ابھی ہمارے پاس سارم بھائی نے چونکہ ہمیں جوائن کیا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ آج ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ، یہ جب علامہ صاحب جمیل بھائی اور تقی بھائی عمران بھائی ہمیں واقعہ سنا رہے تھے فتح مکہ میں، تو بچوں کے لیے خاص کہا گیا، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے خاص طور پہ کہ ان کو تکلیف نہ پہنچانا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفقت ہے وہ بہت، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان میں مشہور تھی کہ آپ کیا تھے. تو ہم ان کے امتی ہیں. آج یہ بچہ جس کو ہڈیوں کی تکلیف ہے اور شاید اس کی گروتھ جو ہے اس پہ افیکٹ کر رہی ہے، اس کی زندگی پہ افیکٹ کر رہی ہے، اس بچے کا جو ہے چلنا پھرنا وہ معذور ہے چلنے پھرنے سے، وہ بچہ جو ہے بالکل ڈپینڈنٹ ہے اپنے گھر والوں پہ، وہ بچہ نہ کچھ کھیل سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ وہ نارمل ہو سکتا ہے جس طرح میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت. اس بچے کا فوٹیج دیکھیے، اور یہ ان کا باپ جو ہے انتہائی غریب شخص ہے اور بیمار بھی ہے، دمے کا مریض ہے. یہ کوئی مشقت نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہاں پر کیسز آتے ہیں وہ موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے آف کورس. اور اس کے بعد آپ اپنی بھوک کے لیے کچھ انتظام کریں گے یا پھر آپ تعلیم کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے. تو یہ وہ خاندان ہے جو تعلیم حاصل تو نہیں کر سکا. اب یہ خود بیمار ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی. آپ نے یہ مناظر خود دیکھے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ دنیا کا کوئی انسان جو ہے نا وہ کسی بچے، آپ دیکھیں، آپ جب ہم ایک سرٹن ایج میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا یہ اس کی بھئی اس کا نصیب ایسا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے یا وہ خود محنت کرے کوشش. ایک بچہ کیا کرے گا جس نے دنیا دیکھی نہیں ابھی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے. باپ بیمار اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے یہ؟ تو آپ بتائیں کہ کیا یہ بچہ خدا نہ خاصہ اس کا باپ جو بیمار اس کو کچھ ہو جائے، اگر آپ اور ہم اس کی ہیلپ نہیں کریں گے تو بہت یہاں پر مسئلہ اس طرح. سارم بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کس طریقے سے لوگ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں؟ ایک ہی بچہ ہے وہ بھی ایسا لاغر بیمار. بہت مشکل سے وہ جو والد ہیں اس کے، وہ اپنی بیٹی کے ہی رہ رہے ہیں، داماد کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. اچھا اس کا علاج ہے جی صحیح اس لیے نہیں ہو رہا کہ روٹی کے پیسے نہیں ہیں. پھر وہ جو انکل ہیں ان کے اپنا جو وہ ہے میڈیسنز 4-5 ہزار روپے ہفتے کی دوا آتی، سانس کے مریض ہے وہ. تو اس کو اگر سپورٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ بچہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس کا والد بھی بہتر ہو جائے گا. بچے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ٹریٹمنٹ ہے، لیکن ٹریٹمنٹ ہوگا تو ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جو پیٹ بھر روٹی نہیں کھا پاتے، وہ دوائیاں کہاں سے لیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کیسے؟ جی، یا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے مچھلی کھلائیے اس کو، مرغی کھلائیے، سوپ پلائیے. اب وہ کہاں سے کریں؟ وہ تو وہ ساری پرابلمز آتی ہے. اگر کوئی علاج بھی ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کو اچھا فوڈ بھی چاہیے ہوتا ہے. پھلوں کی یخنیوں کی مطلب اس کے سبزیوں کی یخنی کی نوبت آ گئی. تو حالات ایسے کہ ہم تو خرید ہی نہیں سکتے. تو بالکل جی، میں ذرا جاتی ہوں یہ فیملی کے پاس. یہ بچہ ہے نعمان، بہت کم اس کی عمر ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ معصوم ہے بالکل، اس کو اندازہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے زندگی میں. اچھا السلام علیکم جی، میں ان کے والد صاحب سے بات کروں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی چاچا کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بچہ یہ ہے، گھر والی فوت ہو گئی ہے. اچھا، ایک بیٹی ہے. یہ آپ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے. بس یہ آپ کے 2 بچے ہیں آپ کے؟ بس. اچھا، اس کو بچے کو جب یہ پیدا ہوا تھا اس کو تب کوئی پرابلم تھی نعمان کو؟ چلتا تھا تب. یہ 2 سال پہلے ابھی چھوڑ دیا اس نے. پہلے چلتا گھومتا تھا، ابھی اس نے چھوڑ دیا. پیشاب ہم موٹر میں کراتا ہوں، بیٹی کرا دی ہے، کرایہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اتنا بات کرتے ہوئے سانس چڑھا ہے، میں تو آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہوں کہ تو آپ خود صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کوئی کام بھی کرتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ گزارا کرتے ہیں؟ ایک کھانے کا ٹائم ایک کھانا نہیں. آپ ان کی بیٹی ہیں، مجھے بتائیں کس طریقے سے آپ لوگ گزارا کرتے ہیں؟ یہ تو چاچا بیچارے تو جو بات کرتے ہوئے ان کو اتنا سانس چڑھ جاتا ہے کہ مجھے سوال پوچھتے ہوئے ان سے تکلیف ہو رہی ہے. تو آپ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں پھر؟ آپ کے پاس ہے مائک؟ جی، میرے ایک ہی بھائی ہے، ابو اور بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں. میرا شوہر جو ہے وہ ٹھیلا چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کرائے پہ بیٹھے ہیں، گزار نہیں ہمارا ہوتا صحیح سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کس طریقے سے بھی ڈاکٹر، آپ لوگ ڈاکٹر کو دکھائے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں نعمان کے بارے میں؟ اس کا دکھایا بہت علاج پیسوں کہ بولے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. کتنے پیسے؟ اور آپ کے والد صاحب کے بھی علاج کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ ان کو بھی ڈاکٹر کے پاس؟ دمے کی بیماری ہے، ٹی بی کی ہے، اس کی بھی. یہ بس پمپ پہ دوائی پہ چلتا ہے، یہ نہیں ہوتے تو پھر اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. نوازا لے کے گیا اس کو. ہاں جی،
अच्छा नवाब शाह बोले लेके गए 3 लाख खर्च करोगे सही हो जाएगा, 3 लाख का खर्च हुआ था। सही हो जाएगा, मशीन में डालेंगे, पैरों पे खड़ा हो गया, दाखिल होगा, हमारे पास पैसे ले आ गुंजाइश चाचा, नहीं पैसे है नहीं इसका मेरा, सीटी स्कैन होगा। पैसे नहीं है। तो नुमान बात करता है। है। जी हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नमान गला नुमान गला बैठना कितने साल का नुमान? 10 साल का ना, 10 साल का। बोलते हो क्या नाम है? बुधाइस नमान। नुमान। नुमान देखिए अब मदिया, मैं- उसके उसके चेहरे पे तो वही मुस्कुराहट है जो मुस्कुराहट। किसी भी एक नॉर्मल बच्चे की चेहरे पे होती है, कि वो मासूम बच्चा है, उसको अंदाज़ा नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन चूंकि बाप इस कदर बीमार है, मैं इनके इस प्यारे से बच्चे के बाप की हालत देख के तो मैं समझता हूँ कि पहले तो उनको इलाज की ज़रूरत है खुद से, और वो कुछ अपने पैरों पे खड़ा होगा, वो आदमी कुछ कमा सकेगा तो बच्चे को शायद खिला सके बेहतर। वो भी बीमार अपनी बेटी के घर में रह रहा है, बच्चा भी बिल्कुल एक मोहताज बन के रह गया, तो ये कौन संभालेगा इस ख़ानदान को? मुझे तो बस अल्लाह की इसमें क्या कहेंगे जमील भाई? आप देखिए कि बाप भी बीमार, बेटा भी बीमार, अपनी बेटी के घर में रह रहा है, लोगों के क्या आप कहेंगे हमारे लोगों को? मैं ऐसा करूं कि इंसान जो है इंसानियत को दुखी और तकलीफ़ में देखकर उसे मदद करना चाहिए। और इस बच्चे का ट्रीटमेंट जिस तरह सारिम भाई ने कहा, मुमकिन है कि मेरे ख्याल में इसको नर्व्स की प्रॉब्लम्स है कुछ, कोई nerves, जिसकी हाँ। वजह से उसको स्पाइन से आगे कोई नर्व प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आगे उसकी टांगे जो है वो हो गई। तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ सर्जरी, छोटी छोटी सर्जरियाँ 5-8 होती हैं, जिसके बाद ये। और मुझे रशियन डॉक्टर से वो तो पोलियो के मरीज को भी खड़ा कर दिया करते थे। हमारे यहाँ कुछ 15 साल पहले आए थे, उसके बाद फिर दहशतगर्दी उरूज पर पहुंची तो वो शायद गालिबन चले गए। तो ये ट्रीटमेंट हमें वहाँ से इंपोर्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, और इन सब का इलाज होना चाहिए। लेकिन इस फैमिली की सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। और अगर कोई साहिब हैसियत, साहिब सरबत है, साहिब दिल है, और जिसके बाद अपने भी बच्चे हैं, और वो अपने बच्चों को जब खेलता हुआ दौड़ता हुआ देखे तो इस बच्चे की माजूरी उसे ज़रूर याद आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है जमील भाई ने, बहुत अच्छी बात की। तकीय भाई क्या कहेंगे आप? जी, बच्चों के हवाले से बतौर ख़ास ये हुक्म है कि बच्चों की जितनी इंसान मदद कर सकता है और उनकी इस्लाह कर सकता है, उनको अच्छी ज़िंदगी फराहम कर सकता है, फराहम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनको अभी बहुत ज़िंदगी गुजारनी है, बिल्कुल बहुत से नेक अमाल करने हैं, दुनिया में बहुत से कारनामे दिखाने हैं। और ये कुरान करीम की आयत भी है कि इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, कि हम उन नामे अमाल को भी लिख रहे हैं कि जो तुमने अभी अंजाम दे दिए हैं, और उसको भी लिख रहे हैं कि जिसके आसार बाकी हैं, सुभान अल्लाह, और वो तुम्हारे नाम अमाल भी तो लिखे ये जाएंगे। सदका जारिया होगा, बिल्कुल किसी सदका बच्चे जारी हो जाएगा। अगर ये बच्चा आपकी वजह से सेहत हासिल करता है, तंदुरुस्ती हासिल करता है, अच्छी एजुकेशन हासिल करता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है और माशरे के अंदर किरदार अदा करता है, तो ये जो नेक काम करता रहेगा उसका अजर व सवाब भी बड़ी अमाल है। बच्चों की मदद इसलिए भी करना है कि इमरान भी कि बच्चा बड़ा हो के जब कोई क्योंकि इसको भी आगे नेक काम करने हैं, ये कितनी अच्छी अप्रोच है सोचने की, जब किसी की बच्चे की मदद करे तो। कुरान पाक में जब कल क़यामत में ज़िक्र किया गया है कि अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया व लम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया इला आखिरिही, कि कल क़यामत में 2 तरह के लोग होंगे। कुछ लोगों को दाएं हाथ में अमालनामा दिया जाएगा, कुछ लोगों को बाएं हाथ में दिया जाएगा। जिन लोगों को बाएं हाथ में एक नाकामी की अलामत होगी, तो कुरान ख़ुद ज़िक्र करता है ईमान नहीं था इनके पास, और साथ ही जो सबसे पहली बीमारी ज़िक्र की है वो ये की है कि ख़ुद आप नहीं किसी मिस्कीन का, गरीब का, यतीम का भला कर सकते, कम से कम दूसरों को तरगीब तो दे सकते। तरगीब दे दें, तो हमें ज़रूर तरगीब देनी चाहिए, और ये तसव्वुर बांधना चाहिए कि यही बच्चा अगर मेरे घर में होता और इस माजूर शख्स की जगह या बीमार शख्स की जगह मैं होता, या मुझे अपनी बेटी के घर में रहना पड़ जाए, तो मेरे क्या जज्बात हों। अल्लाह अकबर। तो बजाय किसी का मजाक उड़ाने के हम दूसरों पर रहम खाएंगे, इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, तो फिर आसमानी निज़ाम हरकत में आता है, फिर वो रहमतें बरकतें आती हैं कि दुनिया मिसालें देती है। क्या कहने, इसलिए खूब बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल सही। सालिम भाई आप क्या कहेंगे इनके बारे में? फैसल भाई, बात यह है कि सपोर्ट करनी चाहिए। बाप बेटा जिस कंडीशन में ये किसी सिग्नल पे खड़े हो जाए ना जाकर के, तो 3-4 हज़ार रुपये भीख जरूर मिल जाएगी ज़्यादा। आजकल तो एक माफिया है, मैं भी वहाँ जाना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं बच्चे को थोड़ा करीब से मैं देखना चाह रहा हूँ। और सारे में अपने बड़ी अच्छी बात है कि आजकल तो माफिया बन गया है पूरा, ये चाहें तो जाके भीख मांग सकते हैं लोगों से, यानी सड़क पर खड़े हो जाए। लेकिन हमारे मुआशरे में ये एक
सिलसिला बन गया भीख मांगने का, तो हमें उसको तो निगेट करना है। अगर हम लोग बढ़ के मदद नहीं करेंगे तो जाहिर है वो सड़क पे आएंगे ना लोग। जी क्या कहेंगे आप सारे में बताइए। तो बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़े, इसकी मदद करें, इसका ट्रीटमेंट है खुद से करा दें, नहीं तो हमारे थ्रू करा दें, और इसको मंथली सपोर्ट कर दें। और बेटी क्या भले रहे, लेकिन अगर बाप की जेब में पैसे और बेटी के घर को भी सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली फिर उधर एक इज्जत से रह सकता है वो। तो मेरा ख्याल है कि लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर बेहतरी आएगी। अच्छा मैं जमील भाई एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं करीब से मेरे भाई जो हैं हमारा, क्योंकि ये कोई गैर नहीं है, ये हमारे माशरे का चूँकि हिस्सा है ये आदमी, तो ये हमारे में से है ना, ये एक पाकिस्तानी भी है और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी है, सबसे बड़ी बात है। और रमज़ान के ये 10 दिन जिसको हम एतकाफ़ के दिन कहते हैं शुरू हो रहे हैं आज। अच्छा कितनी हम नेकियां कमाना चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि नवाफिल अदा करें, क़यामुल लैल करें, कुरान पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रोज़ा बेहतर हो, लेकिन ये जो नेकी हम रोज़ चल के सामने लेके आते हैं लोगों के, तो मेरा भाई इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने अभी देखा है कि ये अपनी बीमारी की वजह से इस तरह का आपको कमज़ोर महसूस हो रहा है। और इनसे मैं भी इनके ऊपर क्योंकि चूँकि हाथ रखा हुआ है इनके, तो इनसे सांस नहीं लिया जा रहा, बहुत इतनी तकलीफ में है ये भाई, लेकिन ये हमारे पास चल के आए हैं सिर्फ इसलिए कि मैं और आप मिल के इनका ये जो प्यारा सा बच्चा है इसकी मदद कर सकें। और ये अच्छा एक बात, स्कूल जाने का दिल करता है? चलो ये स्कूल जाने का दिल करता है, पढ़ने का दिल करता है? नहीं करता। पढ़ने का दिल नहीं करता, क्या दिल करता है? खेलने का दिल करता है। खेलते हो वहाँ घर पे किसके साथ? दोस्त है? कोई दोस्त है? प्यारे मासूम बच्चे को मालूम ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि इनके जो हाथ और पैर हैं वो कुछ थोड़े से जिस तरह कमजोरी से टेढ़े हो रहे हैं सारे भाई। जी वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले चलना ही छोड़ दिया। डॉक्टर से आपकी कोई बात हुई आपने किसी? नहीं, अभी ये जो है ना मुसलसल केसेस रोज की बुनियाद पे आ रहे होते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट जो इमरजेंसी नहीं होती तो उसको ईद के बाद फिर कराते हैं, क्योंकि रमजान में जो है बहुत ज्यादा रश हो जाता है, ईद के बाद शुरू होता है। तो अभी इनकी जो ट्रीटमेंट है वो ईद के बाद शुरू होंगे सबके फिर। और आप अपने ओन पे भी कराएंगे कोई? लेकिन ये दिखाया हुआ है कि इसका इलाज है तो इलाज है तो वो इलाज हो सकता है। ठीक है जी। सारिम भाई के नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पे और आप सब लोग देख रहे हैं। आज हम चूँकि फ़तह मक्का को डिस्कस कर रहे हैं और हम बार बार ये बात आज के शो में हमने की कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के हवाले से, बुज़ुर्गों के हवाले से और ख़वातीन के हवाले से, आप देखिए कि इनकी बेटी जो हैं वो अपना घर चलाएं या अपने बाप को सहारा दें या अपने छोटे भाई को सहारा दें। तो ये मेरा आपका काम बनता है कि यहाँ पे आगे बढ़ें और हम इनकी मदद करें। अगर आप लोग फ़ोन करना चाहते हैं फ़ोन कीजिए, आप लोग कुछ भेजना चाहते हैं तो सारिम भाई की वेबसाइट पे जाइए। ये NGO है जो बहुत से जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनका सहारा बनते हैं। स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे हैं।